I will talk on Doppler ultrasound in DVT and its complications. I think mostly जो है ना वो जितने भी लोग हैं वो GP शिप जो है ना वो कर रहे हैं, and you all come across with the swelling, usually unilateral, sometimes bilateral in the lower limbs, and that's a big dilemma. That whether it's acute condition, whether it's a generalized condition, whether it is due to some local pathology, or whether it is due to some systemic disorders. So there are a lot of causes of either you come across with the unilateral or bilateral lower limb swelling. So today I will mainly focus on the unilateral lip swelling, and my main purpose will be that how you can diagnose the deep vein thrombosis and sometimes superficial vein thrombosis, and how you can do if you're doing the Doppler ultrasound in your clinic, and how you can do the Doppler ultrasound, and then what are the differential diagnosis. Is every time swollen lower limb is DVT. So we should also have in our mind that when we're making a diagnosis of lower limb swelling, we should also consider the age of the patient, and then also the predisposing factors. And history, I think, is also very, very important regarding the diagnosis. If Dr. Janjua is here, Assalamu alaikum, sir. How are you? So I think he's one of the best practitioners in my town, in the Thokan Yazbeg, where I live, where I brought up. And when I was going to school, I think we go to him and and he's one of the best practitioners. That whenever he has some problem, he called to me that Dr. Sahab, even मुश्किल केस एक भेज रहे हैं, मैं मुश्किल ही भेजा करो जो है ना, definitely जो है. So nice to see you, sir. So the deep vein thrombosis, as you all know regarding your knowledge, it can be either in the IVC, it can extend from IVC to upward into the renal vein, then it can extend up to the right atrium, and then from right atrium to RV, and then it can complicate to PE, which is a life-threatening condition, and then the lower limb from the common femoral vein, external iliac vein, then internal, and then superficial femoral vein, popliteal vein. So how it forms, as you all know that there is a unidirectional flow of the blood due to the competent valves in the lower limbs. So when there is any predisposing factor like trauma, like patient is immobile, patient has some bleeding disorders, so usually there is a small formation of clot which starts, and if that predisposing factors alleviated by the physician or by the patient himself, then it can not progress into the thrombus formation. It can, if it is not properly dead, then it can go into the thrombus formation, and if it is more complicated, then definitely it can embolize. And you all know that PE is the most deadly complication. So predisposing factors, as already said, trauma, decreased blood flow, tumor, especially the malignancies, pelvic malignancies, maybe the female women malignancies of the ovarian or uterine, especially if those are the grade stage 3 tumors, they are usually predisposing factors because they compress the adjacent veins, then they can result into the deep vein thrombosis. Then conjoint abnormality, the blood system is
also very, very important, especially when you see a lower limb swelling in a pediatric patient, then you must rule out that whether there is any congenital abnormality of the blood present or not. Immobility, pregnancy is another important. So usually patients come across with the swelling. You all know that swollen lower limb, and it's really the challenge. So how we should proceed? So फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो है ना वो, तो मुझे जिनेवा साहब इसीलिए बड़े पसंद हैं कि ये पेशेंट को एग्जामिन बहुत अच्छा जो है वो करते हैं. Always he examines the patient in detail and give diagnosis that I am suspecting acute appendicitis. कभी इन्होंने अल्ट्रासाउंड अब्डोमेन नहीं भेजा, कहते हैं कि मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब ये acute appendicitis जो है ना वो है, तो then definitely radiologist focus on that area, and then he also gives his opinion that it's not acute appendicitis, it's something else. So then D-dimers, they are sensitive, but there are a lot of other causes of raised D-dimers. Then plethysmography, not reliable nowadays. Nuclear medicine, no role. MR के बारे में ये कहना चाहूँगा कि MRI जो ना हाई कॉस्ट फैक्टर है, तो इसमें जो ना वो यूजुअली हम नहीं करते. लेकिन समटाइम जो ना MRV अगर जो ना वो पेशेंट, लेकिन यूजुअली वी डोंट गो फॉर MRV इन लोअर लिम्स. ब्रेन में हम जो ना MRV डेफिनेटली करते हैं. CT विनोग्राम जो है ना वो भी रूटीन में हम नहीं करते, इट्स नॉट प्रोटोकॉल गाइडलाइंस में नहीं है. लेकिन इफ यू आर डूइंग CT चेस्ट, अगर फर्ज करो पेशेंट डिस्निया के साथ आया और आप CT चेस्ट के लिए विद IV कॉन्ट्रास्ट एडवाइस करते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि आप नीचे वाले स्लाइसेस के लोअर लिम्ब के ले लें, सो दैट यू नो इफ आपको P नजर आ रही तो DVT भी है या नहीं है. मेन रोल जो है ना वो डॉपलर अल्ट्रासाउंड का ही जो है, तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड पे एनाटमी आप सब लोग जो है ना बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो है ना वो फ्रॉम दी RBC, देन एक्सटर्नल iliac vein, देन common femoral vein, and then these are deep veins usually are associated with the arteries. Superficial veins not associated with the arteries. Then we have the short saphenous vein and the long saphenous vein. Short saphenous vein along the lateral margin, then the great saphenous vein along the medial malleolus, and it drains into the femoral junction. Small saphenous vein drains into the popliteal junction. Then there are perforators. Perforators की भी significance जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ है कि sometimes varicosities से आपको जो है ना, so varicosities are something else, वो एक अलग entity जो है ना वह, उसमें आपको सेफनोपोप्लिटियल और सेफनोफेमोरल जंक्शन और उसकी इनकॉम्पिटेंसी जो है ना वो देखनी पड़ती है. तो हाउ व्हाट आर द नॉर्मल काइज? फर्स्ट थिंग, जब आपने डॉपलर मशीन रखनी, फर्स्ट थिंग इज स्पॉन्टेनिटी. कि आपने डॉपलर रखा तो आपको जो है ना वो अगर फ्लो नजर आ गया, इट मीन देयर इज नो डीवीटी. नंबर 2, फिजिसिटी जो है ना वो है. फिजिसिटी क्या है कि जो ही सांस लिया मरीज ने, अगर रैपिड है तो इस तरह का वेव फॉर्म आएगा, अगर स्लो है तो इस तरह का वेव फॉर्म आएगा, और एपनिया है तो फिर ये मोनोफेजिक फ्लो जो है ना बनता है. तो ये रेस्पिरेशन के होता है. अगर फिजिसिटी है, इट मींस देयर इज नो डीवीटी. देन कंप्रेशन जो है ना वो, कंप्रेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट कि आपने कंप्रेस अपनी प्रोब जब रखी है तो वेन को जेंटली आपने कंप्रेस करना है, ज्यादा जोर से कंप्रेस नहीं करना, क्योंकि सेम्बलाइजेशन का जो है ना खतरा होता है और वेन जो है ना वो कंप्रेस हो जाएगी बड़ी इजीली जो है ना वो. तो देन एक्सटर्नल कंप्रेशन, ये रिलैक्सेशन में वेन नजर आ रही है, ये वाली जो है ना वो कंप्रेशन पे वेन जो है ना वो नजर आ रही है. देन ऑगमेंटेशन की डिस्टली आपने जहां पर आप वेन देखना चाहते हैं थोड़ा सा जो है ना वो उसको कंप्रेशन दी तो ऑगमेंटेशन जो है ना वो नजर आएगी. तो ऑगमेंटेशन अनदर इंपॉर्टेंट अगर है, देयर इज नो डीवीटी. Valsalva maneuver में अगर if there is increased venous size, then there is no DVT. तो ये वाली जो है ना वो स्लाइड दिखा रही है कि जो है ना वो हाउ इज द वाल्व जो है ना वो नजर आते हैं. देन वीनस रिफ्लक्स. वीनस रिफ्लक्स जो है ना वो उसका क्राइटेरिया है, ये यूजुअली जब स्वेलिंग जो है ना वो वेरिकोसिटीज के लिए हो, उसके लिए हम जो है ना वो देखते हैं. मोर देन 2 सेकंड ड्यूरेशन अगर हो तो फिर हम कहते हैं कि जो है ना वो ग्रेड सिग्निफिकेंट रिफ्लक्स जो है ना वो उसका है. ये इसकी ग्रेडिंग जो है ना मैं उस पर जो है ना वो नहीं जाऊंगा. देन हाउ वी शुड परफॉर्म द डॉपलर अल्ट्रासाउंड. जब आपने ये हेड ऑफ मिकी माउस जो है ना वो जब आप प्रोब रखेंगे, जस्ट जो है ना वो
at the medial side of the femoral triangle, just below the inguinal ligament. तो ये स्ट्रक्चर जो है ना वो कॉमन femoral vein नजर आएगी, इधर से जो है ना वो कॉमन femoral artery ये साथ है, और इसमें जो है ना यहाँ पर long cephalous vein आके जो है ना ड्रेन हो रही होगी. So this is the confluence of the ये वाली जो है ना वो superficial femoral vein है, ये deep femoral vein है, this is the artery. ये नॉर्मल जो है ना वो आपको नजर आएगी. देन सुपरफिशियल वेन एंड आर्टरी, अडक्टर कैनाल में आपने थोड़ा सा इसको एलिवेट करके जो है ना करना है. अगर आप पॉप्लिटल फोसा देखना चाहते हैं तो पेशेंट को आप प्रोन करके भी कर सकते हैं और पेशेंट को बिठा के भी जो है ना वो देख सकते हैं. और प्रोब आप सबको पता है कि यूज करनी है हमने जो है ना हाई रेजोल्यूशन प्रोब, लीनियर प्रोब जो है ना वो. तो हम कॉन्वेक्स प्रोब भी यूज करते हैं या नहीं, एनीवन करते हैं या नहीं करते, कब करते हैं? कॉन्वेक्स प्रोब जब बहुत मोटा पेशेंट है ना और डीप आप जो है वो देखना चाहते हैं, स्पेशली डॉक्टर कैनाल में, और पेशेंट बहुत ज्यादा फैटी है, देन उसमें हमें जो है वो वी समटाइम्स टेक हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स प्रोब. तो ये लॉन्ग सेफनस में और स्मॉल सेफनस वेन की जो है तरीकाकार उसको देखना है. देन नॉर्मल सेफनस femoral junction on Doppler, then on grayscale ultrasounds. नॉर्मल पोप्लिटियल जंक्शन जो है ना वो ग्रे स्केल पे और डॉपलर पे जो है ना वो नजर आ रहा है. देन दिस इज सेफन पोप्लिटियल जंक्शन. इनकॉम्पिटेंस जो है ना वो, इनकॉम्पिटेंस में अगर आपको रिवर्स फ्लो जो है ना वो नजर आ रहा है, उसका कलर भी चेंज हो गया है, तो देन इट में बी सेफन पोप्लिटियल और सेफन femoral जंक्शन. काजेस यूजुअली जो है ना वो इसकी डीवीटी, जॉइंट इफ्यूजन्स, हीमाटोमास, कोलेक्शंस, लिम्फेडिमा, पोप्लिटियल सिस्ट, पेल्विक नोड्स. तो इसमें मैं कुछ जो है ना वो आपको दिखाऊंगा कि जो है ना वो कैसे जो है ना वो डिफरेंट चीजें जो है ना वो नजर आती हैं. आइसोलेटेड आइलियर femoral अगर डीवीटी है तो उसमें पेरीपार्टम पीरियड मोर देन 90%, पेल्विक मैस हो सकती है, रिसेंट पेल्विक सर्जरी हो सकती है, और कॉन्ट्रासेप्टिव हो सकते हैं, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम जो है ना वो हो सकती है. देन एज ऑलरेडी से यूनिलैटरल या बाइलैटरल जो है ना वो है. यूनिलैटरल जो है ना वो ज्यादा कॉमन है, बाइलैटरल यूजुअली अगर मैलिग्नेंसीज हो तो उनमें जो है ना वो होता है. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट साइन जो है ना वो, इंट्राम्यूरल थ्रोम्बस डायरेक्ट साइन, लॉस ऑफ एसिडिटी, देन इनकम्प्रेसिबिलिटी, इंक्रीज इन वेन डायमीटर, नो फ्लो इन पल्स डॉपलर, नो फ्लो इन कलर डॉपलर. ये अगर है तो दीज आर द डायग्नोस्टिक ऑफ. Another view, picture showing the compression के क्या आपने कैसे करनी है. This is the transverse compression आपने करनी है. यहाँ पर जो है देखें वेन बिल्कुल कंप्रेस हो गई है, यहाँ पर जो है वेन कंप्रेस नहीं हुई, इसका मतलब है थ्रोम्बस है. और ये अगर पार्शली थ्रोम्बोज है वेन तो इस तरह जो है वो अगर पार्शियल थ्रोम्बस है, दिस इज द पार्शियल थ्रोम्बस, तो इस तरह जो है नजर आएगी. सो रिलैक्सेशन और कंप्रेशन पे अगर आप देखें तो वेन का डायमीटर भी ज्यादा है, ठीक है. फिर उसके बाद जो है ना वो कंप्रेस की, कंप्रेस भी नहीं हुई. अगर ऑगमेंट करेंगे तो इसके अंदर फ्लो भी जो है ना वो नजर नहीं आएगा. तो ओक्लूसिव डीवीटी राइट femoral वेन ये वाली जो है ना वो नजर आ रही. दिस द रेड इज द femoral आर्टरी, ये बिल्कुल जो है ना वो ठीक है. देन फ्री फ्लोटिंग थ्रोम्बस भी जो है ना वो आ सकता है. फ्री फ्लोटिंग थ्रोम्बस इन LVF एक्सटेंडिंग टू कॉमन femoral वेन, ये वाला जो है ना वो ठीक है. देन पार्शियली ऑक्लूडेड जो है ना वो थ्रोम्बस भी हो सकता है, जैसे इसमें देखें थोड़ा सा जो है ना वो फ्लो नजर आ रहा है, लेकिन जहां पर जो है ना वो फ्लो बिल्कुल नहीं. सो पार्शियली थ्रोम्बोज जो है ना वो वेन है. देन लॉन्ग सेफनस वेन इन डीवीटी, अनदर हाई वॉल्यूम spontaneous flow demonstrates in long saphenous vein of patient with obstruction. तो इसमें अगर आप देखें तो लॉन्ग सेफनस वेन जो है ना वो नजर आ रही है, उसमें हाई जो है ना वो फ्लो वॉल्यूम है. क्यों? क्योंकि आगे से जो है ना वो ऑक्लूड है मेन वेसल, तो ब्लड उसके अंदर ज्यादा है, तो इसके लिए फ्लो जो है ना वो ज्यादा जो सुपरफिशियल वेन्स है उनके अंदर ज्यादा जो है ना वो नजर आता है. तो काफ वेन थ्रोम्बोसिस मोस्टली रिजॉल्व कर जाते हैं, 10% प्रोपेगेट करते हैं. नो पल्मोनरी एम्बोलिज्म इनमें होता है. बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट इज अनसर्टन. इफ प्रेजेंट रिपीट द एग्जाम एवरी 2 to 3 days. डॉक्टर का ये भी फायदा है कि आप जब मर्जी जन्म कर सकते हैं, इस मल्टीपल टाइम में भी जो है ना वो कर सकते हैं. जैसे ICU में जो है ना हम 6 hours भी जो है ना वो करते हैं देखने के लिए. So this is the advantage of DVT of the
पेरोनियल वेन एंड पोस्टीरियर टिबियल वेन, ये आप देखें इसमें जो ना वो थ्रोम्बस जो ना वो नजर आ रहा है। देन थ्रोम्बोसिस ऑफ द गैस्ट्रोक्यूनियस वेन, another picture. सुपरफिशियल यूजली जो ना पेनफुल पेशेंट जो ना थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के साथ प्रेजेंट करते हैं, एंड यू कैन सी दी saphenous femoral junction here is the thrombus lying within the long saphenous vein. एक्यूरेसी जो है वो अल्ट्रासाउंड की क्या है, प्रॉक्सिमल लेग वेन्स में 95% सेंसिटिव है और स्पेसिफिसिटी 98% है। आइसोलेटेड काफ वेन्स में 70% सेंसिटिव है, 90 to 100% स्पेसिफिक है। ये सिम्टोमेटिक पेशेंट अगर है, अगर एसिम्टोमेटिक पेशेंट है तो फिर जो है ना उसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी भी जो है ना वो कम है। देन हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्यूट एंड क्रोनिक थ्रोम्बस। तो एक्यूट थ्रोम्बस समटाइम जो है ना वो बड़ा मिमिक करता है, इकोजेनिक नजर नहीं आता, बहुत ही सोनोल्यूसेंट होता है, हाइपो एक्विक होगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि ना ही जो है ना वो ऑगमेंटेशन पे कुछ होगा, ना ही जो है ना वो कंप्रेसिबिलिटी होगी। क्रोनिक होगा तो कैल्सिफिकेशन इज द लैंडमार्क ऑफ क्रोनिक थ्रोम्बस। देन कोलैटरल वेन्स आर लैंडमार्क ऑफ क्रोनिक thrombosis. Then venous webs can develop within the veins. This is another hallmark of chronic thrombosis. Then post-thrombotic syndrome, irregular wall, atretic occluded veins. This is another image of DVT popliteal fossa के अंदर जो ना देखेंगे. This is the vein which is thrombosed. Then another patient having a popliteal vein thrombosis. अब इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर पेशेंट को जो है ना वो हमने एंटीकोएगुलेट जो है ना वो नहीं करना, सम टाइम बेचते हैं तो सब सिंपली जो है ना मैंने देखा सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग सेलुलाइटिस होता है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में मैंने बहुत ज्यादा जो है ना वो देखा है कि आप अल्ट्रासाउंड करते हैं, फ्लूइड जो है ना वो सबक्यूटेनियस एरिया में समटाइम छोटी छोटी कलेक्शंस भी होती हैं तो वो इजीली जो है ना वो ठीक हो जाता है जब आप एंटीबायोटिक्स देते हैं, जैसे डायबिटीज जो है ना वो कंट्रोल करते हैं। देन अनदर इंपॉर्टेंट द बेकर सिस्ट जो है ना वो बेकर सिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अगर इसको डीबी के साथ कैसे करना है कि इट विल बी आइसोलेटेड अवे फ्रॉम दी वेन्स बिल्कुल ठीक नजर आएंगी। देन कॉम्प्लेक्स पोप्लिटियल सिस्ट जो है ना वो अनदर पेशेंट हैविंग कॉम्प्लेक्स पोप्लिटियल सिस्ट हेटेरोजेनस एरिया इन द पोप्लिटियल एरिया। देन फ्लूइड कलेक्शन जो है ना वो भी हो सकती हैं, स्पेशली देखा कोई ट्रामा होगा या डायबिटिक पेशेंट है उसके अंदर जो है ना वो एब्सेसेस हो सकती हैं। सो अगर फ्लूइड कलेक्शन है, एब्सेस है, पेनफुल है पेशेंट, सीआरपी उसका जो है ना वो बहुत ज्यादा है, 100-200 से भी ज्यादा है और टीएलसी उसका जो है ना 23,000 है, देन डेफिनेटली जो है ना वो आपको उसको अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस जो है ना वो जरूरत है कि एस्पिरेट जो है ना वो किया जाए। देन सिंपल पोप्लिटियल सिस्ट जो है ना वो अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा पुरानी है यू कैन वेट, अगर पेशेंट को सिम्टोमेटिक है देन यू कैन डू अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस एस्पिरेशन जो है ना वो। अनदर इंपॉर्टेंट हीमाटोमा जो है ना वो हीमाटोमा यूजली जो है ना अगर मैंने जो देखे पेशेंट जो है या तो ट्रामा का हो, अगर ट्रामा नहीं है तो कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, देन या ये पेशेंट को कैथेटराइजेशन जो है ना वो की हुई है या पेशेंट को कोई कैनुलेशन जो है ना वो उसकी वेन बड़ी डिफिकल्ट थी उसको पंक्चर करते हुए जो है ना हीमाटोमास बन जाते हैं तो वो भी प्रेजेंट करते हैं विद स्वेलिंग। उसमें फिर हमने जो है ना वो डेफिनेटली जो है ना वो जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है उनको कंट्रोल करना है, प्लस जो है ना वो आपने उसको वेट एंड सी जो है ना वो करना है। देन अनदर कलेक्शन इसमें देखें डेब्री भी हैं, सबक्यूटेनियस एरिया के अंदर है, इरेगुलर है, तो ऐसे पेशेंट को जो है ना अगर एंटीबायोटिक्स के साथ ठीक होते हैं ओके, अगर नहीं ठीक होते देन वी हैव टू डू दी अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस एस्पिरेशन। कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम, देन ब्लड क्लॉट इन द किडनी, देन ब्लड क्लॉट इन द हार्ट लीडिंग टू हार्ट अटैक, ब्लड क्लॉट इन द ब्रेन, क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी, ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो हो सकती हैं। अब यहाँ पर सीटी का जो है ना वो डेफिनेटली 100% जो है ना वो रोल है। अगर डीवीटी वाला पेशेंट सडन डिस्निया के साथ आपके पास आता है तो यू मस्ट सस्पेक्ट पी, अगर पी करने और एक्सरे के ऊपर आपको पेरिफेरल ओपेसिटी भी नजर आ गई है देन डेफिनेटली गो फॉर CTPE। ठीक है, CTPE जब आप करेंगे यू विल सी दी फिलिंग डिफेक्ट,
तो ये वाइट जो है ना वो कॉन्ट्रास्ट नजर आ रहा है, ये वाला जो फिलिंग डिफेक्ट है, दिस इज विद इन द पल्मोनरी आर्टरी, ये स्मॉल देखें, तो दीज आर द पल्मोनरी एम्बोलाई। आया रोल जो है ना वो इसका कॉन्वेंशनल एंजियोग्राफी या डीएसए का है या नहीं है जी? एनीबॉडी अगर डीएसए करनी चाहिए या नहीं? अगर पी सस्पेक्ट कर रहे हैं, करनी चाहिए डीएसए डायरेक्टली? नो, नहीं करनी। वेरी गुड, नहीं करनी चाहिए, आपको सीटी एंजियो करनी है। हाँ, अगर आप थ्रोम्बोलाइसिस करनी है देन डेफिनेटली वी हैव टू डू दी गो फॉर डीएसए। डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक दोनों जो है ना वो करेंगे। सो दिस डीएसए इमेज जो है ना वो, अब हम डीएसए डायग्नोसिस के लिए नहीं करते पीई की जो है ना वो, we do the DSA only when we want to intervene and we want to do the thrombolysis जो है ना वो। Another is the case of P, लेफ्ट में आप देखें, राइट में देखें, इतनी बड़ी जो है ना वो, और उसके कन्फ्लुएंस के ऊपर भी जो है ना वो, और थोड़ा सा साइज जो है ना वो आरटी का भी जो है ना वो इंक्रीज हो गया। सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट इज एंटीकोएगुलेंट्स, जो कि आप लोग जो है ना एज ए जीपी जो है ना डेफिनेटली करते हैं। समटाइम्स थ्रोम्बोलाइसिस जो है ना वो अगर बहुत एक्सटेंसिव है करनी पड़ती है, एंड समटाइम्स द वीनस थ्रोम्बेक्टमी जो है ना वो भी अगर बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक्सटेंसिव थ्रोम्बोसिस है। तो एट द एंड कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन। एक मैं आपके साथ जो है ना वो डॉपलर अल्ट्रासाउंड की सिग्निफिकेंस पे शेयर करना चाहूँगा अपनी एक्सपीरियंस, कि हमारी जो है ना वो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि कितनी ज्यादा जो है ना वो स्पेशली हैंड हेल्ड जो अब अल्ट्रासाउंड आ गए उनकी सिग्निफिकेंस कितनी है। हमारी सर जो पेशेंट एसोसिएट प्रोफेसर गायनी की, दे प्रेजेंट विद द सीवियर बैकएक के साथ प्रेजेंट की और इमरजेंसी में गई, हमारे लोगों ने जो है ना वो देखा, उनका ठीक है जी हम इसका एमआर करते हैं, इसका डॉपलर भी करते हैं, बट दे सेड कि नहीं हमने गंगाराम लेके जाना है या हमने किसी टीचिंग हॉस्पिटल में जाना है। हमने कहा ठीक है जी जो है ना वो आप दे जाए, वो ले गए वहां पर जो है ना वो आवर डायग्नोसिस वाज समथिंग ऑक्लूडिंग दी वैसल, सो वैस्कुलर हम सस्पेक्ट कर रहे थे। 3 दिन पेशेंट जो है ना पड़ा रहा जो है ना वो, उनको गिलन-बारे सिंड्रोम की ट्रीटमेंट जो है ना मिली। फिर उसके बाद जो है ना वो सडनली वन डे one of colleague of vascular surgeon went to that just to call her के पता करें कि जो है ना कैसी हैं। उन्होंने जब देखा, मैं ये आपकी सिग्निफिकेंस के लिए कि आपकी इंपॉर्टेंस कितनी है जो है ना वो जीपीएस की, उसने देखा इसकी तो डॉर्सल स्पीडस ही नहीं आ रही। यानी उस वैस्कुलर सर्जन ने जब उसको टच किया ना, उसके डॉर्सल स्पीडस, उसके पास हैंड हेल्ड डॉपलर भी था, उसने देखा तो उसमें जो है ना वो कोई फ्लो जो है ना वो नहीं है। Then they did CT angios. CT angio पे there was a big thrombus lying in the aorta and it was occluding the aortic. और ये मतलब it was a crisis and emergency, then बेचारी जो है ना वो होगी सर्जरी जो है ना वो वैस्कुलर सर्जन ने जो है ना वो की। तो टेक होम मैसेज मेरा यही है कि काइंडली मरीज ने देखो लाजमी जो है ना, मरीज के साथ इंटरेक्शन लाजमी करें बीइंग जीपी, उससे सवाल लाजमी पूछे, नंबर 1। दूसरा उसको बेचारे को जो है ना वो एग्जामिन भी करे। एक तो वो जो है ना लोग कहते हैं कि जीपी बड़ा जो है ना वो मतलब, लेकिन कई क्लिनिशियन मैंने देखे हैं जो पेशेंट की हिस्ट्री ठीक लेते हैं और उसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उनका 100% डायग्नोसिस ठीक होता है और वो पैथो रेडियोलॉजी जस्ट जो है ना वो कंफर्म करते हैं। तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड इज वेरी गुड, और इसमें भी यूनिलैटरल स्वेलिंग में भी जो है ना वो डॉपलर इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग। थैंक यू।